નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કિસાન એટલે જગતનો તાત। આપણે આઝાદ થયા ત્યારે PL 480ના ઘઉં અને ઓસ્ટ્રેલિયાની માઇલો જુવાર ભીખ માંગીને દુનિયામાંથી મેળવીને આપણી રેશનિંગની દુકાનેથી વેચી આપણે આપણું પેટ ભરતા હતા। 50 મિલિયન ટન એટલે 5 કરોડ ટન અનાજનું ઉત્પાદન 1951માં થતું હતું। આજે આપણે લગભગ 300 મિલિયન ટન એટલે 30 કરોડ ટન અનાજનું ઉત્પાદન કરીએ છીએ। આજે અન્ન સ્વાવલંબનને કારણે આપણે દુનિયામાં ભીખનો કટોરો લઈને ફરવું નથી પડતું। આ ઉપરાંત આજે દૂધના ઉત્પાદનમાં આપણે પ્રથમ નંબરે છીએ, ફળો અને શાકભાજીના ઉત્પાદનમાં આપણે વિશ્વમાં બીજા નંબરે છીએ। આ બધી સિદ્ધિઓ જેના કારણે છે એમાં ક્યાંક તત્કાલીન કૃષિ મંત્રી અને કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો તેમજ ખાતર બિયારણ થી લઈને સુધરેલી કૃષિ પદ્ધતિ સુધી અનેક કારણો જવાબદાર છે। આ પરિસ્થિતિમાં ખેડૂત જ્યારે સડક પર ઉતરે ત્યારે આપણા માટે ચિંતાનો વિષય હોવો જોઈએ, અને તેમાં પણ એ વિસ્તારના ખેડૂતો જે ગ્રેનરી ઓફ ઇન્ડિયા કહેવાય છે, એટલા બધા ઘઉં પકવે છે, એટલા બધા ચોખા પકવે છે કે આજે આપણે થોડું ઘણું નિકાસ પણ કરી શકીએ છીએ। આ પરિસ્થિતિમાં એકાએક પલટો કેમ આવ્યો? સરકારે 2020ના ચોમાસુ સત્રમાં કૃષિને સ્પર્શતા 3 મહત્વના કાયદા પસાર કર્યા છે। આ કાયદાઓ સામે કૃષકોમાં ખૂબ મોટો વિરોધનો વંટોળ ઉઠ્યો છે। આ મુદ્દે કેન્દ્ર સરકારનું સાથી અને વર્ષો સુધી એક મહત્વના મજબૂત સાથી તરીકે જોડાયેલું અકાલી દળ પણ સામા પક્ષે જઈ બેઠું છે। અકાલી દળના પ્રતિનિધિ તરીકે કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળમાં કેબિનેટ મંત્રી એવા હરપ્રીત કૌરે રાજીનામું આપી દીધું છે। પંજાબ અને હરિયાણામાં ખેડૂતો રીતસર રસ્તા ઉપર ઉતરી આવ્યા છે, એમનો રોષ ચરમસીમાએ છે। હરિયાણામાં મુખ્યમંત્રી ખટ્ટરે ખેડૂત આંદોલનકારીઓ દિલ્હી સુધી ન પહોંચે તે માટે અવરોધો ઉભા કરવામાં કશું બાકી ન રાખ્યું એવો એમનો આક્ષેપ છે। આમ છતાંય ખેડૂતોની હિંમત દગી નહીં। કૃષિ કાયદાઓના વિરોધમાં દિલ્હી સુધી પહોંચેલા ખેડૂતોએ 2 ડિસેમ્બર 2020ના રોજ એક અઠવાડિયું પૂરું થયું ત્યારે દિલ્હીની સરહદોએ ધામા નાખ્યા। દિલ્હીની સિંધુ, ગાઝિયાબાદ અને ટીકરી સરહદો પર દિલ્હીને જોડતા ધોરીમાર્ગો પર હજારો ખેડૂતોએ તંબુ લગાવીને અડીંગો નાખ્યો છે। બીજી તરફ કેન્દ્ર સરકાર ખેડૂતોનો આક્રોશ જોઈને કૂણી પડી અને વાટાઘાટોની દિશામાં આગળ વધી। સરકાર અને 35 જેટલા પ્રતિનિધિ ખેડૂત મંડળો વચ્ચેની મંત્રણાઓ ફળદાયી ન રહી। ખેડૂતોની સ્પષ્ટ વાત હતી કે જ્યાં સુધી આ નવા કૃષિ કાયદાઓને રદ નહીં કરવામાં આવે ત્યાં સુધી કોઈ જ સમાધાન શક્ય નથી। સરકારે આ સમગ્ર મુદ્દે શું થઈ શકે તે માટે એક સમિતિનું ગઠન કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો, જેને ખેડૂતોએ ધરાર નકારી કાઢ્યો છે। ખેડૂતોની એક જ વાત છે, કોઈ ચર્ચા નહીં, કાયદાઓ રદ કરો। આમ 1 ડિસેમ્બર 2020 ખેડૂતો વતી 35 જેટલા સંગઠનોના પ્રતિનિધિઓ અને કેન્દ્રીય મંત્રી તોમર, ગોયલ, સોમપ્રકાશ વચ્ચે બેઠકનો પહેલો રાઉન્ડ ફલશ્રુતિ વગરનો રહ્યો છે। ત્યાર પછી યોજાયેલ અનેક બેઠકો પણ નિષ્ફળ રહી છે। કિસાન પ્રતિનિધિઓ પોતાની માંગ મુદ્દે જરા પણ સમાધાનકારી વલણ અપનાવવા તૈયાર નથી। જાન્યુઆરી 2021ની મધ્યમાં લગભગ 1.5 મહિનાથી દિલ્હી અને આસપાસના રાજ્યોમાં આંદોલન કરી રહેલા ખેડૂતોને લક્ષ્યમાં લઈને દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતે આ કાયદા ઉપર કામચલાઉ સ્ટે મૂક્યો। સાથોસાથ 4 સભ્યોની એક સમિતિની પણ જાહેરાત કરી, જે 2 મહિનામાં પોતાનો અહેવાલ સર્વોચ્ચ અદાલતને આપે તેવું ઠરાવાયું। આંદોલનકારી ખેડૂતોએ સ્પષ્ટ વાત કરી છે,
સરકાર અથવા સુપ્રીમ કોર્ટની સમિતિ પર તેમને જરાય વિશ્વાસ નથી। આ એક સિક્કાની બે બાજુ જેવો ખેલ છે। અમે સમિતિ સમક્ષ નહીં જઈએ, સરકાર કૃષિ કાયદા રદ ન કરે ત્યાં સુધી ખેડૂત આંદોલન ચાલુ રહેશે। બીજી બાજુ ખેડૂતોએ 26મી જાન્યુઆરી 2021ના પ્રજાસત્તાક દિને દિલ્હીમાં ટ્રેક્ટર રેલી કરી। અત્યાર સુધી ચાલતું આંદોલન શાંત હતું, પણ ખેડૂતોએ 26મી જાન્યુઆરી દિલ્હીમાં યોજેલી ટ્રેક્ટર પરેડ દરમિયાન દિલ્હીમાં અરાજકતાના વરવા દ્રશ્યો સર્જાયા। પ્રજાસત્તાક દિનની ગરિમા નંદવાઈ તોફાનો બાદ તંગદિલી વધતા ખેડૂતોએ 1 ફેબ્રુઆરીની સંસદ કૂચને રદ કરી નાખી। 8 મહિના પછી ફરીથી ખેડૂત આંદોલન આક્રમક બન્યું હોય તેવું દેખાય છે। દિલ્હીની સરહદે ચાલતું આંદોલન 22 જુલાઈ 2021થી સંસદની નજીક જંતર મંતર ખાતે શરૂ થયું। ખેડૂતોએ જંતર મંતરમાં ખેડૂત સંસદ ભરી। આ પરિસ્થિતિમાં સમગ્ર કિસાન આંદોલન કઈ દિશામાં જઈ રહ્યું છે તે સંબંધે દેશના નાગરિકો તરીકે આપણને ચિંતા હોવી જોઈએ। આ આંદોલન હજુ સુધી હરિયાણા, પંજાબ, પશ્ચિમી ઉત્તર પ્રદેશ અને રાજસ્થાનના કેટલાક ભાગો સુધી જ ઉગ્રતાથી ફેલાયું છે। દેશમાં અન્યત્ર એની વધતી ઓછી અસર છે, પણ ખાસ અસર જણાતી નથી। આ સંયોગોમાં આજે આ આંદોલનની દિશા અને દશા વિશે આપણે રાષ્ટ્રીય કિસાન મજદૂર મહાસંઘના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી શિવકુમારજી શર્મા કક્કાજી સાથે ચર્ચા કરવાના છે। संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी तेओ सभ्य छे। कक्का जी, हम आपका गुजरात समाचार टेलीविजन की ओर से और गुजरात के हमारे दर्शकों की ओर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप जैसे सीनियर आगेवान ने इस चर्चा में अपने मंतव्य व्यक्त करने की स्वीकृति दी, इसलिए हम आपसे आपके आभारी हैं और हम मानते हैं कि आपकी बातों से गुजरात के किसानों को भी कहीं न कहीं एक दृष्टि और दिशा जरूर मिलेगी और नागरिकों को ये किसान आंदोलन किस दिशा में, किस मोड़ पे आकर खड़ा है, उसके बारे में भी प्रथमदर्शी माहिती उपलब्ध होगी। तो आपका स्वागत करते हुए हम आपसे पूछना चाहेंगे कुछ प्रश्न, जिसकी वजह से आज की परिस्थिति में हमें एक तरह से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, प्रथमदर्शी माहिती उपलब्ध हो सके। काका जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि किसान आंदोलन की गति और गतिविधि के बारे में आपको क्या कहना है? क्या आप भी मानते हैं कि यह तीनों कृषि कानून रद्द कर देने चाहिए या उसमें समाधान के लिए कोई अवकाश आपको दिखाई दे रहा है? सभी को नमस्कार। देखिए, थोड़ा सा 2 मिनट का समय ज्यादा होगा। 5 जून को एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ। हमने 15 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा मध्य प्रदेश से कि ये तीनों कानून किसानों की डेथ का वारंट है, इससे देश का किसान नहीं बचेगा। कोई जवाब नहीं आया। हमने फिर पूरे देश के किसान नेताओं को भी पत्र लिखा, जो हमारे राष्ट्रीय किसान महासंघ में थे, उनको पत्र लिखा। पंजाब ने इसको बहुत जल्दी समझ लिया। हमारे सामने चुनौती थी कि 5 जून को ऑर्डिनेंस जारी हुआ, हमको इस पर मंथन करने में 15 दिन का समय लग गया। हमको 50 वर्ष हो गए हैं किसानों की सेवा करते हुए। तो ये हमारा किसान कैसे समझेगा इस कानून को, 3 ऑर्डिनेंस को? ये बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। हमने जागरण यात्रा भी निकाली। पंजाब में एक नई पहल हुई कि जो पूरे देश में 2 धाराओं में किसान आंदोलन चल रहे थे, राष्ट्रीय किसान महासंघ, जिसमें 180 गैर राजनीतिक मानसिकता वाले संगठन है, पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल है, और एक अखिल भारतीय किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, किसान महासभा है और तमाम पॉलिटिकल लोग भी हैं। दोनों अलग अलग किसानों के मांगों को लेकर आंदोलन करते थे। पंजाब में यह प्रयोग हुआ कि पंजाब के 30 संगठनों ने
2.5 महीने तक पंजाब के रेलवे ट्रैक को जाम करके रखा और फिर गुरुद्वारा रकाबगंज में 2.5 महीने के बाद में एक बैठक हुई जिसमें हम करीब 8-9 लोग थे और बैठक में यह तय हुआ कि हमको 26 नवंबर को दिल्ली के लिए कूच करना है। उसमें 7 मेंबरी कमेटी बनाई गई जो 7 लोग इस पूरे देश के आंदोलन को दिशा और दशा देंगे। उसमें मैं भी एक मेंबर हूं। उसके बाद 26 नवंबर को हम लोगों को रवाना हुए हर जगह से और जहां हमको रोका वहां हम रुक गए। हमने कोई रोड जाम नहीं किया, बैरिकेड लगा दिए, बहुत बड़े बड़े तार लगा दिए, कीले लगा दिए, तो हम लोग वहीं रुक गए। और जब से अभी तक हमको 9 माह हो गए हैं, लगभग 26 तारीख को हमको 9 महीना हो जाएगा। 9 महीने से हम लोग बैठे हुए हैं। शुरुआती दौर में मध्य प्रदेश दिल्ली आगरा रोड को जाम किया, टिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर, सिंगू बॉर्डर, जहां जहां रोका गया वहीं वहीं अपना टेंट लगा के हम लोग और अपनी भी ट्रैक्टर ट्रालियों से बैठ गए। आंदोलन चलने लगा। 11 राउंड हमारी चर्चा हुई। 5 मंत्री केंद्र सरकार के होते थे और हमारे 40 साथी हम लोग होते थे चर्चा में। चर्चा में हम लोगों ने बिंदुवार चर्चा की कि ये तीनों कानून में दिक्कतें क्या है। सरकार बार बार कहती रही कि इसमें क्या क्या संशोधन चाहते हैं आप, वो आप कराइए, पर कानूनों को हम रद्द करने में असमर्थ हैं। तो जो हमको कानून नहीं चाहिए वो कानून आप हमको क्यों देना चाहते हैं? और तीनों कानून की जानकारी आपको है, दर्शकों को भी पता होगी। हालांकि ये बहुत बड़ी चुनौती है कि पूरे देश के किसानों को तीनों कानून, क्योंकि किसान इतना भोला भाला होता है कि वो तीनों कानून को बारीकी से नहीं समझ पाता है। अभी भी बहुत क्षेत्र बाकी है जहां किसानों को समझना है कि 3 कानून क्या है। फिर भी मैं मोटे तौर पर आपको एक बात बता देता हूं कि पहले कानून में एक राष्ट्र एक कृषि बाजार रहेगा, प्राइवेट मंडियां होंगी, सरकारी मंडियां होंगी। हम सरकारी मंडी को बंद नहीं करेंगे, सरकार ये बार बार कहती है। हमने एक ऑप्शन दिया है कि आप प्राइवेट मंडी में भी बेच सकते हैं, पर ऑप्शन में आपने हमारे हाथ और पैन को बांध दिया कि प्राइवेट मंडी में जो व्यापारी जाएगा उसको टैक्स नहीं लगेगा और सरकारी मंडी में जो जाएगा उसको टैक्स लगेगा। तो सरकारी मंडी में कोई भी व्यापारी नहीं आएगा। तो उसी तरह हो जाएगा कि सरकारी मंडी अपने आप बंद हो जाएगी। मध्य प्रदेश का सरकार का एक पोर्टल है, ई अयोध्या पोर्टल, उसमें 90 मंडियां मध्य प्रदेश इस कानून के तहत बंद हो गई। और इस कानून के कारण पिछले वर्ष हर फसल एमएसपी पर 50% नीचे बिकी है। इसके दुष्परिणाम सामने है। यह कानून 83 के आसपास यूएस, अमेरिका और यूरोप के देशों में लागू हुआ। वहां के किसान बर्बाद हो गए। 2006 में यह कानून बिहार में लागू हुआ, पूरा बिहार का किसान मजदूर हो गया। इसके दुष्परिणाम सामने है। इन पर भी चर्चा हमने मंत्रियों के सामने रखी। दूसरा कानून था कि जमाखोरी कालाबाजारी में संशोधन किया है उस कानून में उन्होंने, जो 1956 में कानून बना था कि कोई व्यापारी एक लिमिट से ज्यादा जमा नहीं कर सकता और कालाबाजारी नहीं कर पाएगा। उस कानून को इन्होंने खत्म कर दिया कि कोई भी व्यापारी कितनी भी जमाखोरी कर सकता है और कितने दिन तक भी कर सकता है। उससे जनता को बहुत महंगे दाम में सामान मिलेगा। जो दालों का भी रेट बढ़ा है, जो शक्कर का रेट बढ़ा है, जो तेल का रेट बढ़ा है, ये इसी कानून का परिणाम है जिसकी सरकार जांच करवा रही है, जिसमें आ रहा है कि जो जमाखोर व्यापारी है उन्होंने बड़ी मात्रा में दालों का और तिलहन फसलों का को ब्लॉक करके रखा है। जो तेल मिलों को नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से तेल महंगा हो रहा है। तो महंगाई जो अचानक बढ़ी है खाद्यान्न की खास तौर से, उसके पीछे ये दूसरा वाला कानून है। पर किसान को लिमिट दी गई है कि किसान तो वैसे भी जमा नहीं करता है, कि किसान इतने समय तक ही माल रख सकता है और इतनी क्वांटिटी में रख सकता है। तो व्यापारियों को छूट दे देना कि वो कितना भी माल जमा कर सकते हैं, कितने दिनों तक भी कर सकते हैं, किसी भाव बेच सकते हैं, उसका दुष्परिणाम जनता भोग रही है। ये लड़ाई असली में जो है जनता की लड़ाई है, गरीब जनता, मिडिल क्लास की लड़ाई है।
और जो तीसरा कानून है वो ट्रेडिंग इसका है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पंजाब से लेकर पूरे देश में अभी बहुत से केस आए हैं। मध्य प्रदेश में 200 करोड़ का व्यापारी लेके भाग गए किसान का माल, क्योंकि उसमें प्राइवेट मंडी में भी यह है कि व्यापारी को लाइसेंस आवश्यक नहीं है, कोई भी पैन वाला आदमी माल खरीद सकता है। तो पैन तो किसी भी आदमी के पास होता है, पैन नंबर वाला आएगा और माल खरीद के चला जाएगा। हम अपील नहीं कर सकते कोर्ट में अपील नहीं करेंगे। केवल पहली अपील एसडीएम के यहाँ है, दूसरी अपील कलेक्टर के यहाँ है। तो ये तो भारत के संविधान में नहीं कोई व्यक्ति न्याय मंदिर जाने से रोका जाए उसको। ये इनकी जितने भी कानून बनाए हैं अभी तक करीब 28 कानून किसान विरोधी बने हैं, उसमें अधिकांश कानून में ये बात है। लैंड बिल है, उसमें भी ये कानून है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये दिक्कत है। और तीनों कानूनों को पूरा जब तक नहीं बदला जाएगा तब तक किसान को राहत नहीं मिलेगी। हम लोग इसी बात को बोलते रहे। जब आप कह रहे हैं कि हम चाहे जितने भी आप संशोधन करवा लें, तो हमने कहा जब पूरे संशोधन हो जाएंगे तो कानून बचता ही नहीं है। जब कानून नहीं बचता है तो उसको आप खत्म करिए। फिर हमने ये भी पूछा कृषि मंत्री से कि क्या आपने किसानों को विश्वास में लिया? उन्होंने कहा कि हमने 93 लाख किसानों से सर्वे करा के उनसे सहमति ली है। हमने आरटीआई लगाई, आरटीआई में कहा कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है। तो ये सरकार इस प्रकार की झूठ लालसाजी करती रही है। एक राउंड अमित शाह जी और 5 मंत्रियों के साथ हमारी बैठक हुई। अमित शाह जी ने बड़े मन से कहा कि आप संशोधन करा लीजिए। तो हमने कहा कि भाई साहब ये आप पहले बोल देते, पहले ही आप एक कानून लाने के पहले बात करते तो ये दिक्कतें नहीं होती। तो बोले वो गलती हो गई है, अब हम आप मिलके इसको ठीक कर सकते हैं। तो ठीक तभी होगी जब इन तीनों कानून को पहले रद्द हो, और रद्द होने के बाद में कौन कौन सा कानून में क्या क्या आवश्यकता है उस पर विचार हो सकता है। परंतु अभी तो आपको कानून रद्द करना पड़ेगा। दूसरी मांग हमारी है C2+50। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसानों की उसकी उपज का दाम देना चाहिए। जो 24 जीन्स आपके जिसकी आप एमएसपी तय करते हैं, वो 24 जीन्स वो आपको देना चाहिए। इस आंदोलन के पहले हमारी केवल 2 ही मांगे थी कि ऋण मुक्ति करें आप और C2+50 दें। 2006 में ये 7 में लागू होना था C2+50, तो पूर्व की सरकार ने नहीं किया, कांग्रेस ने। मोदी जी ने अपने घोषणा पत्र में वादा नंबर 5 में लिखा है कि हम C2+50 देंगे। अपने 2500 भाषणों में उन्होंने कहा है कि हम किसान को C2+50 देंगे। परंतु जब हम लोग ने नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट गए तो सरकार ने एफिडेविट दे दिया कि हम C2+50 नहीं दे सकते। तो ये इन बातों को लेकर 12वें राउंड की बात भी हमारी फेल हुई और ये जनवरी 23 हमारी आखिरी बैठक थी और सरकार ने उसके बाद में कोई वार्ता नहीं बुलाई है। लगभग 700 किसान अभी तक शहीद हो चुके हैं जी। सरकार ने पहले हम आंदोलन के बारे में कहा कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, फॉरेन फंडिंग है, तमाम हम पे आरोप लगाए। 26 जनवरी की घटना घटी जो उनका सरकार का एक षड्यंत्र था और हमको कहा गया कि ये देशद्रोही है, इन्होंने लाल किले की प्राचीर को खंडित कर दिया। तबकि वो सिद्धू जो है, जो सांसद सनी देओल है, उनका प्रतिनिधि है, उनके चुनाव का प्रभारी रहा है, ये सब बात में सामने आया है। तो वो एक षड्यंत्र का हम लोग शिकार हुए। पर सत्य जो है कभी परास्त नहीं होता, प्रताड़ित होता है। तो प्रताड़ित हम लोग थोड़ा हुए। अब उसके बाद आंदोलन जारी है। फिर कोरोना की महामारी आई। तो कोरोना की महामारी में मैंने एक विषय रखा कि चूंकि महामारी में पूरा देश परेशान है, दुनिया परेशान है, तो हम भी कोई बड़ी गैदरिंग नहीं करेंगे। हम भी देश के साथ है, यथास्थिति बना के रखेंगे। जितने ट्रैक्टर हमारे हजारों आप खड़े हैं वो खड़े रहेंगे। काढ़ा पिएंगे जो सरकार बंटवा रही है, हम लोग भी काढ़ा बनाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। जैसे ही महामारी समाप्त होगी या कम होगी, हम कोई आंदोलन फिर से इसको और तेज करेंगे। तो आंदोलन लोग पूछते हैं कि क्या खत्म हो गया है, क्या ये हरियाणा का है, क्या ये पंजाब का है? तो ऐसा नहीं है। ये आंदोलन पूरे देश का है और पूरे देश का आंदोलन होने के नाते जो भी संयुक्त मोर्चा निर्णय लेता है उस निर्णय को पूरे देश के लोग पालन करते हैं। जी। हम लोगों ने ये प्लान किया था
कि एक बात बार बार उठती है कि ये केवल हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, तो संयुक्त मोर्चा ने निर्णय लिया था कि कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमाम जगह से लोग, दूरियां बहुत हैं, 2 दिन 1 रात लगती है आने जाने में, ट्रेनें बहुत कम हो चुकी हैं कोरोना की महामारी में। तो जो संयुक्त मोर्चा निर्णय लेगा, उस निर्णय को दूरी वाले प्रांत पालन करेंगे। जहां भाजपा शासित राज्य है वहां सरकार की अपनी गुंडागर्दी है, हमारे साथी को हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, आंदोलन करने देते नहीं है, और पुलिस का भेजा बल इस्तेमाल करते हैं, मीडिया को भी परेशान करते हैं। पत्रकार वार्ता में हम युद्धवीर सिंह जी आए थे, उनको उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। ये तमाम चीजें वहां दमन चलता है, और उस वजह से कहीं ना कहीं आंदोलन उन प्रांतों में, परंतु दिल और दिमाग में, देश के हर किसान मजदूर के और जनता के दिल और दिमाग में ये आंदोलन है। आंदोलन 2024 तक चलेगा, उतनी हमारी तैयारी है। शर्मा जी, मैं लौट के आपके पास आऊंगा। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, मगर उसके पहले मैं आपके लिए प्रश्न जो मैं पूछना चाहता हूं बता दूं, ताकि आप अपने जो विचार है उनका संकलन कर सके। मेरे 2 प्रश्न है। एक तो ये जो किसान आंदोलन है और सरकार के बीच में करीब 7 महीने से कोई बातचीत नहीं हो रही है, और एक तरह से बिल्कुल थॉ यानी कि बर्फ जमी हुई है। इसी बीच 8 सितंबर से किसान संघ ने मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है। देश के 525 जिले में वो आंदोलन करने की बात जाहिर कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ और लखनऊ में सरकार प्रेरित सम्मेलन किसानों के होने जा रहे हैं। ये सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए क्या लगता है आपको, किसान संघ की क्या भूमिका होगी, आपकी क्या भूमिका होगी, और ये जो किसान सम्मेलन लखनऊ और मेरठ में होने जा रहे हैं उससे आपके आंदोलन को क्या ताल्लुकात रहेंगे और क्या फर्क पड़ेगा? मैं आऊंगा आपके पास ये ब्रेक के बाद, मगर तब तक आप ये 3-4 मुद्दे जो मैंने आपको बताया उस पर सोच रखिए, चर्चा करेंगे आगे उन मुद्दों पे। દર્શક મિત્રો, રોકાઈશું આપણે એક નાનકડા કમર્શિયલ બ્રેક માટે, અને પછી પાછા ચર્ચામાં ફરીથી જોડાઈશું। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કિસાન આંદોલન અને તેની સાથે જોડાયેલા પરિબળો અને હવે પછીના સમયમાં એ કઈ દિશા લેશે, એની દશા શું હશે, તે વિશેની ચર્ચા આપણે કરી રહ્યા છીએ। कक्का जी, हम आपके पास लौटेंगे। जी। हमने जैसे पूछा था आपको कि आपका आंदोलन करीब 7 महीने से तो बात ही नहीं हो रही केंद्र सरकार के साथ, एक तरह से बर्फ जमी हुई है। दूसरी ओर से किसान संघ ने ये 8 सितंबर से देश के 525 जिलों में आंदोलन का आरंभ करने की बात बताई है। कुछ सम्मेलन, किसान सम्मेलन अभी होने जा रहे हैं मेरठ में, लखनऊ में। इस सब चीजों के बीच जो किसान आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन का उससे क्या ताल्लुकात होंगे और क्या असर आपके आंदोलन पे पड़ेगी? क्योंकि एक तरह से किसान संघ तो पूरे देश में ये आंदोलन शुरू करने की बात कर रहा है। तो क्या आप सोचते हैं क्या होने जा रहा है? देखिए भाई साहब, अभी तक हमारा भारतीय किसान संघ डिबेट के माध्यम से विरोध करते रहे। अचानक हमारी मांगों पर उन्होंने अपनी सहमति बताई है। एक बड़ा कटु अनुभव है हमारे साथ इनका। भारतीय किसान संघ का मैं मध्य प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका हूं जी, और इसलिए मुझे कार्यशैली का बखूबी ज्ञान है। जब मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो हमारे एक आंदोलन का इन्होंने विरोध किया।
फिर 4 दिन बाद समर्थन किया और 2 दिन बाद सरकार के साथ हाथ मिलाकर हमारे आंदोलन में गोलियां चलवा दी। अचानक यूपी में सम्मेलन, मेरठ और लखनऊ में ये चुनावी दृष्टिकोण दिखाई देता है। इसमें मेरी डिबेट में मैंने पूछा कि वो लाभकारी मूल्य की बात कर रहे हैं, तो वो अभी तक स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि लाभकारी मूल्य क्या है। लाभकारी मूल्य जब विपक्ष में थे तो वो C2+50 की बात करते थे। अब एक नया फार्मूला निकाला है कि लाभकारी मूल्य क्या है। लाभकारी मूल्य लागत के आधार पर निकाला जाता है, तो कितने % लाभ चाहते हैं, ये उनका अभी कोई स्पष्ट नहीं है। दूसरा, एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट के मामले में वो उनका कहना है कि इसकी आवश्यकता नहीं, इस कानून की, इसको रद्द कर दिया जाए। बाकी 2 कानूनों में वो संशोधन के पक्षधर हैं, जो हमारी उनसे बातचीत डिबेट के माध्यम से हुई है। तो हमारी उनकी विचारधाराओं में भी और मांगों में भी बहुत अंतर है। वो जिस दृष्टिकोण से, हमको पता है कि वो जिस दृष्टिकोण से आंदोलन में किसानों की कुछ मांगों को लेकर आ रहे हैं, हमेशा एक नूरा कुश्ती हुई है उनके साथ। जब उनकी सरकार होती है तो उनके भाव कुछ और होते हैं। पूर्व का अनुभव हमारा अच्छा नहीं रहा है, अनुभव बहुत कटु रहा है हमारा, इसलिए तालमेल हमारे साथ उनका नहीं बनेगा। हम अपनी मांगों पर अडिग हैं कि 3 कानूनों को रद्द किया जाए। और चूंकि मोदी जी जब सीएम थे तो उन्होंने खुद चिट्ठी लिखी थी चेयरमैन थे उस कमेटी के कि एमएसपी को गारंटी का कानून बनाया जाए। तो वो एमएसपी को गारंटी का कानून यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी लागत से 50% नीचे तय होता है, लागत के आधार पर तय नहीं होता है। और अभी तो दुर्भाग्य है कि कमेटी का चेयरमैन ही नहीं है लंबे समय से। मूल्य आयोग जब चेयरमैन कमेटी होती है, उसका चेयरमैन होता है, मोदी जी के कार्यकाल में वो नहीं है। तो कैसे मूल्य आयोग अपने मूल्य को तय करेगा, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है किसानों के सामने भी, सरकार के सामने भी है। और इतना महत्वपूर्ण पद को प्रधानमंत्री जी अभी तक मनोनीत किसी को नहीं कर रहे हैं, किसी की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, ये भी विचारणीय प्रश्न है। तो उनका अलग मंशा है, उनकी आहट हमको दिखाई दे रही है। पर वो अगर ईमानदारी से लड़ते हैं किसानों के लिए तो उनका हम स्वागत करेंगे और हम तो कहेंगे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। 9 महीने बाद सही आपको कुछ आया समझ में कि कुछ करना चाहिए, परंतु हमें पूर्व का अनुभव हमारा ठीक नहीं रहा। आगे वो अपना कह रहे हैं कि हम 525 जिलों में है भारत के और हम हर जिलों में शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देंगे या दिवसीय धरना रखेंगे। तो वो के अपने कार्यक्रम तय उन्होंने किए हैं, वो करें जैसे करना है। उनको हम फिर भी कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद है, परंतु हमारी मांगों में उनकी मांगों में अंतर है। हम शहादत 700 किसानों की दे चुके हैं और 700 किसानों की शहादत पर अब वापस हमको इस पर लौटना संभव नहीं है। हम 2024 तक की तैयारी करके बैठे हुए हैं, आगे हमारा आंदोलन इसी गति से चलेगा। मगर अचानक उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और चुनाव में भी वो केवल यूपी में ही सम्मेलन करना चाहते हैं, तो ये कुछ स्पष्ट दिखाई देता है कि ये सब क्यों हो रहा है। और इसके बाद में कुछ एक आध फार्मूला तय करके वो ये भी कह सकते हैं कि हमारी मांगे मान ली गई, आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो हमारे आंदोलन से उनके आंदोलन में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। उनकी कोई मंशा अभी तक बहुत साफ नहीं है। उसके पहले भी प्रधानमंत्री को वार्ता को बुला सकते हैं। तो वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमारे आंदोलन से उनके आंदोलन का कोई संबंध नहीं है। हम अपनी बातों पर अडिग हैं, आगे भी अडिग रहेंगे। हमारी जो मांग है कि C2+50 और ऋण मुक्ति, ये 2 मांगे हमारी 2016 से हम लगातार कर रहे हैं। खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दान। हम कर्ज माफी नहीं चाहते। मोदी जी बार बार कर्ज माफी की बात करते हैं, तो हमने कोई अपराध नहीं किया है। माफी अपराधियों को मिलती है। हमने तो घाटा सहन करके देश को उत्पादन दिया है, देश को पालने का काम किया है। तो हम एक बार ऋण मुक्ति चाहते हैं
और C2+50 के फार्मूले के तहत हम लाभकारी मूल्य चाहते हैं। ये तो हमारी बात है, पर हम इसकी तो बात हमारी दब गई है। हम तो कह रहे हैं जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका कम से कम कानून तो बनाओ आप। अभी पूरे भारत में केवल 6% किसानों को ही MSP का रेट मिल पाता है, केवल 6% किसानों को। हमारी बात यह है कि यदि आप कानून बना देंगे कि MSP से नीचे किसी किसान की फसल नहीं बिकेगी, तो कम से कम भारत के 100% किसानों को इस MSP का लाभ मिल सकेगा। जब ये बात हमने अमित शाह जी के सामने रखी तो उन्होंने कहा कि 16 लाख करोड़ का हमको घाटा होगा इसमें। तो हम कहते नहीं भाई साहब, आपका हिसाब किताब थोड़ा ठीक करिए आप। 16 लाख करोड़ का आपको घाटा नहीं होगा। 16 लाख करोड़ की आप हमसे जब फसल परचेज करेंगे तो उसको बेचेंगे। दालें नाफेड खरीदता है, जंगली फसलें ट्राइफेड खरीदता है, FCI हमारा गेहूं और धान खरीदता है, वो आगे उसको बेचता है। तो जब बेचोगे तो आपको उसके बदले में पैसा मिलेगा। तो हार्डली 1 से 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ आप पर पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई 3 काले कानून हमारे लिए संभव नहीं है कैंसिल करना। फिर बहुत बाद में लोग कहेंगे कि आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे। तो हम कहा नहीं, 12,000 के आसपास ऑर्डिनेंस कांग्रेस ने कैंसिल किए हैं। आपने भी लैंड बिल जो ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, उस लैंड बिल को आपने भी वापस लिया है। तो ऐसा नहीं है कि 3 कानून पास हो गए हैं तो वो कैंसिल नहीं हो सकते। तो स्थिति हमारी बहुत साफ है। वो क्या कर रहे हैं, क्या कैसे करेंगे, क्योंकि संघ और सरकार में कोई बहुत अंतर नहीं होता है, सब अच्छे से जानते हैं। जो सरकार तय करेगी, सरकार की मंशा के अनुकूल भारतीय किसान संघ चलेगा और आगे भी चलता रहेगा और पीछे भी चला है। तो ये हम बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं। और हमारा तो जो राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा है, पूरे देश के किसानों का बनाया हुआ है, संयुक्त मोर्चा समय समय पर निर्णय करता है। अभी सम्मेलन है, कार्यक्रम हम दे रहे हैं। अभी संयुक्त मोर्चा ने तय किया था कि हम किसान संसद लगाएंगे। हमारा काल तो 1 करोड़ किसानों का था, पर चूंकि बड़ी गैदरिंग में कोई वारदात ना हो, इसलिए सरकार जो प्रशासन के साथ हमारी वार्ता हुई कि हम 200 लोगों को ये अलाउ करेंगे। तो हम कहा चलो ठीक है, 200 लोग भी हम लोगों ने 9 तारीख तक किसान संसद संयुक्त मोर्चा के निर्णय अनुसार चलाई। अब संयुक्त मोर्चा ने ढेर सारे कार्यक्रम यूपी, उत्तराखंड और मिशन पंजाब को दिए हैं, उनका हम लोग क्रियान्वयन करेंगे। भारतीय किसान संघ क्या करता है, ये उनका लुकआउट है और उनकी विचारधारा है। हमारी मांगों में उनकी मांगों में अंतर है। अभी तक वो आज से 8 दिन पहले तक हमारे खिलाफ खड़े थे, हमारे आंदोलन में सरकार के साथ सुर से सुर मिला रहे थे। वो भी हमको आतंकवादी, खालिस्तानी तमाम चीजों पर नाराज रहे थे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। पूर्व का हमारे जीवन का उनके साथ जो अनुभव रहा है वो कटु है, अच्छा नहीं रहा। कक्का जी, आपकी बात सुनते हुए ऐसा लगता है कि किसान संघ के साथ आपका तालमेल नहीं होने वाला है, और ये नहीं होने वाला इसी वजह से एक समांतर एक स्थिति पैदा हो सकती है, जहां कुछ तो कुछ सही किसान एक अलग आंदोलन कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं उससे आपकी जो संयुक्त मोर्चा जो किसान आंदोलन कर रहा है उसकी ताकत जो है उसमें कोई फर्क पड़ेगा, उससे कोई तकलीफ होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे आंदोलन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग हमारे खिलाफ खड़े थे वो पहले भी हमारे साथ नहीं थे, आगे भी हमारे साथ मान लो नहीं रहते हैं, तो हमें कौन सा अंतर पड़ने वाला है? इसलिए हमारे आंदोलन को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। हमारा आंदोलन तो बगैर उनके सपोर्ट के, सहायता के चल ही रहा है, उनके विरोध के बावजूद भी चल रहा है। तो इसलिए हमारे आंदोलन में किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। गुजरात के लोग भली भांति जानते हैं भारतीय किसान संघ को, और वो आप भी भली भांति जानते हैं कि भारतीय किसान संघ किस प्रकार से आंदोलन करता है, किस प्रकार से वापस लेता है। हाँ, ये जरूर हमने देखा है कि कुछ सरकार थोड़ा बहुत जब देने की मंशा करती है तो क्रेडिट संयुक्त किसान मोर्चा को ना मिले, इसलिए अपने लोगों से कुछ मांग उठाओ और उसके बाद में कुछ थोड़ा बहुत दे दो। तो ये लगता है कि कुछ मन बनाया होगा सरकार ने यूपी चुनाव के पहले, पंजाब और उत्तराखंड चुनाव के पहले, कि भारतीय किसान संघ मांग करेगा और हम उसमें कुछ ना कुछ मांग में देंगे और फिर अपील करेंगे कि साहब आंदोलन समाप्त हो गया है, किसानों की मांगे मान ली गई हैं। तो ये प्रकार का भी कुछ
पर हम लोग बहुत सतर्क हैं इसको लेकर, और हमारी निगाह इस पर पूरी पैनी निगाह है कि हम आगे अपना काम जो हम 9 महीने से कर रहे हैं वो करते रहेंगे। इस प्रकार की आंदोलनों से सरकार पहले भी कहती रही कि ढेर सारे आंदोलन हमारे साथ हैं, ये तो मुट्ठी भर किसान हैं, ये तो हरियाणा पंजाब के किसान हैं। जब कभी हम कॉल देते हैं तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हर जगह के राज्यों में हमारे कॉल का पूरा पालन होता है। तो इसलिए आंदोलन को कोई असर नहीं पड़ेगा, कहीं दूर दूर तक असर नहीं पड़ेगा। हाँ, आंदोलन को बांटने का एक असफल प्रयास हो सकता है, परंतु वो सफल कभी नहीं होगा। मगर असफल तो असफल प्रयास हो सकता है। किसान संघ इसीलिए मैदान में, ऐसा आपका आक्षेप है क्या? वो बात सही समझे हम? जी, किसान संघ कहीं न कहीं एक तरह से इस आंदोलन में एक अलग भूमिका से आपके सामने मैदान में है, और इसका कहीं न कहीं प्रभाव हो सकता है या संघर्ष हो सकता है, ये बात आप मानेंगे? नहीं, हमारा उनसे कोई संघर्ष नहीं है। 9 महीने में हमने सब कुछ झेल लिया है जी। 9 महीने में हम भांति भांति की तकलीफ झेल चुके हैं। हमारा उनसे कोई संघर्ष नहीं है। उनकी रास्ता अलग है, वो सरकार की गोद में बैठ के काम करते हैं, हम सरकार के सामने बैठ के काम करते हैं, तो हमारे काम करने की शैली भी अलग है। इसलिए सरकार तो हमारे खिलाफ शुरू से ही है, आंदोलन के खिलाफ शुरू से ही है, तो उसमें हमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, ना उनसे हमारा कोई संघर्ष होने वाला है। वो अपने ढंग से अपना आंदोलन चलाएंगे, सरकार से वार्ता करेंगे, जो उन्हें करना हो वो करेंगे। हम अपनी नीति और नियत के प्रति पूरी तरह समर्पित है। हमारी नीति ठीक है और हमारी नियत ठीक है, तो लक्ष्य प्राप्ति से संसार की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। जी, यानी कि आप 2024 तक इस आंदोलन को जीवित रखेंगे और लड़ते रहेंगे? जी हाँ, हमारी तैयारी 2024 तक की है। 2024 तक का हमने टाइम टेबल बनाया हुआ है, और जो भी वार्षिक महीने में कार्यक्रम होते हैं उनको हम वही मनाते रहेंगे। पूरे देश के किसानों को समय समय पर कोरोना की महामारी को देखते हुए उसमें हम देश के साथ हैं, तो हम उसको आंदोलन कहीं पर सांकेतिक रूप पर करते रहेंगे जी। हम चाहते तो हम महामारी में भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते थे, परंतु कुंभ मेले में जिस प्रकार से सरकार कटघरे में खड़ी हुई, बंगाल चुनाव को लेकर सरकार कटघरे में खड़ी हुई, अब हम भी कोई बड़ी गैदरिंग करते तो आंदोलन भी कटघरे में खड़ा होता। इसलिए हमने महामारी के काल में यथास्थिति बनाने का सोचा, और मीडिया में ने दिखाना भी कम कर दिया, धीरे धीरे बंद ही कर दिया था, क्योंकि मीडिया भी जानता है कि देश में चिताएं जल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में दवाएं नहीं मिल रही है, गंगा में लाशें तैर रही है, तो ये मीडिया दिखा रहा था। तो मीडिया का वो दिखाना जरूरी है, पर मीडिया ये भी तो दिखा रहा है कि आंदोलन हमारा बदस्तूर चारों बॉर्डर पर हम लोग अभी भी डटे हुए हैं। हर शुक्रवार को हमारी बैठकें होती है, और शुक्रवार की बैठक में निर्णय लेते हैं। अभी 25 तारीख को फिर हमारी बैठक है, और 25 तारीख को बैठक में कुछ अहम निर्णय लिए जाएंगे। तो कार्यक्रम हम लोग बीच बीच में किसानों को देते रहते हैं, ताकि आंदोलन जीवित रहे, आंदोलन का देश में संदेश चलता रहे। असली में ये लड़ाई जो है मिडिल क्लास की है, मिडिल क्लास की लड़ाई को हम लोग किसान लोग लड़ रहे हैं। किसान की लड़ाई तो है ही है। जी कक्का जी, बहुत शीघ्र ही पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं। इस आंदोलन की, उस चुनाव पर आपकी राय के अनुसार क्या असर पड़ेगी? राकेश टिकैत जी ने किसान संसद का आयोजन किया, और जिस तरह दिल्ली को घेर रखा है उसी तरह लखनऊ का घेराव करने की भी बात कही है। तो आने वाले समय में आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, रणनीति मेरी कुछ नहीं होती है, संयुक्त मोर्चा जो निर्णय करता है। राकेश टिकैत भी संयुक्त मोर्चा के अंदर आते हैं, और उन्होंने कई बार कहा है कि जो संयुक्त मोर्चा निर्णय करेगा मैं उसका पालन करूंगा। रहा सवाल हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड के चुनाव का, तो हम यानी पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है आने वाले राज्यों के लिए। हम, ये मेरी राय व्यक्तिगत है, अभी नवंबर तक तो हमारे संयुक्त मोर्चा की राय यही है कि हम ये नहीं कहेंगे कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, ये हमारा काम नहीं है, हम नॉन पॉलिटिकल हैं। परंतु हम 28 कानून जो मोदी जी ने
अपने कार्यकाल में किसानों के खिलाफ बनाए हैं। आते ही साथ सबसे पहले उन्होंने 200 रुपया गेहूं पर बोनस बंद किया था, पैडी पर बोनस बंद किया था, कपास के निर्यात पर रोक लगाई थी, मसूर दाल के निर्यात पर रोक लगाई थी। इस प्रकार से जो काम किए उन्होंने, लैंड बिल लेकर आए, जब लैंड बिल केंद्र में पास नहीं हो सका तो राज्य सरकारों के द्वारा ये कह दिया कि लैंड राज्य का विषय है, इसलिए इसको राज्य सरकारें लागू करें, और जहां जहां बीजेपी शासित राज्य थे वहां लैंड बिल लागू हो गया। तो ये तमाम चीजें जो की है, अब इसकी जानकारी उस प्रदेश की जनता को, किसानों को, मजदूरों को देंगे कि 40 कानून मजदूरों के खिलाफ पार्लियामेंट में बनाए हैं, जो बहुत खतरनाक कानून है, वो हम मजदूरों को जानकारी देंगे कि ये, और 3 कानूनों के बारे में जानकारी देंगे। ये हम जानकारियां पूरे प्रांतों में जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं बिंदुवार देंगे, फिर वहां की जनता, वहां का किसान, वहां का मजदूर विचार करे कि उसको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। क्योंकि अभी भी ये हम मानते हैं कि जो हिंदुत्व का अफीम चटाई गई है देश को, उसका नशा उतरने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर हमको उम्मीद है कि हम ये नशा उतार के छोड़ेंगे। बाकी वोट किसको नहीं देना है, किसको देना है, ये अभी हम जरूर नहीं करेंगे। कक्का जी, आपने मजदूर कानूनों की भी बात की। अभी तक तो आप जो कर रहे हैं वो किसान आंदोलन है, और किसानों के साथ मजदूरों को जोड़ने की भी बात आप कर रहे हैं। तो ये किस तरह की रणनीति होगी? आज तक तो कोई मजदूर नेता आपके साथ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैसे जोड़ेंगे? मजदूर नेता बहुत काम साथ में है। जो किसान महासभा है सीपीएम का, सीपीआई के, ट्रेड यूनियंस हैं, उनके लीडर्स हमारी मीटिंग में आते हैं। मेरे संगठन का नाम है राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ है, तो मेरे संगठन में तो मजदूर पहले से जुड़ा हुआ है। वो 40 कानून वो बिंदुवार जानकारी देंगे। मजदूर हमारे साथ में है, किसान हमारे साथ में है, और अभी जो 40 कानूनों में जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन सा कानून कहां हुआ है। पर चूंकि आंदोलन के इशू 2 हैं, 3 कानून रद्द करें और एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाए, तो मजदूर की बात तो हम करते हैं, क्योंकि मजदूर को भी गेहूं महंगा मिलेगा, मजदूर को भी आटा महंगा मिलेगा, मजदूर को भी तेल महंगा मिलेगा। कानून नंबर 2 जो है एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट, उसके तहत मजदूर और मिडिल क्लास, इन दोनों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, वो भी हमारे साथ है। देश कोशिश करके हम पूरे देश के लोगों को साथ करेंगे, और ये बड़ा आंदोलन होगा। और व्यक्तिगत तो मैं ये मान के चलता हूं कि अब आने वाले समय में 1970 से लेकर 75 तक लोकनायक जयप्रकाश का मूवमेंट से हम लोग बाहर निकल के आए थे। उस आंदोलन में संपूर्ण क्रांति नारा दिया था जेपी ने। 77 में जनता पार्टी बन के आई और एक मत पथ क्रांति देश के अंदर हुई। यह भी संपूर्ण क्रांति पार्ट 2 की ओर जा रहा है देश। इसमें महिलाएं, मजदूर, किसान, नौजवान, बेरोजगार नौजवान, ये तमाम लोग पूरी ताकत के साथ में इस आंदोलन 2024 तक खड़े होंगे, दिखाई देंगे। जी कक्का जी, आपने बहुत अहम बातें की। लगता है कि आप एक लंबे समय की रणनीति के साथ इस मैदान में खड़े हैं। जी। और आपका लक्ष्य है 2024 तक इस आंदोलन को ले जाने का। किसी भी आंदोलन को इतना लंबा खींचना उतना आसान नहीं होता, और कहीं ना कहीं उसमें दरारें दिखने लगती है। तो मेरा आपसे पूछना था कि अन्य राज्यों में जहां ये आंदोलन का प्रभाव नहीं है, यह आंदोलन ले जाने की आपकी क्या योजना है, या फिर आंदोलन सिर्फ हिंदी बेल्ट में ही सिमट कर रह जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आंदोलन भारत के हर किसान के दिल और दिमाग में है। आपके गुजरात में बहुत तानाशाही है, कोई कार्यकर्ता आंदोलन नहीं कर सकता, करेगा तो उसको हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी अमूमन स्थिति यही है, भाजपा शासित राज्यों में स्थिति यही है। हरियाणा एक अपवाद है, हरियाणा दिल्ली से लगा हुआ है। भौगोलिक परिस्थितियां हमको बाध्य करती है। हमें पता है कि बहुत दूर के राज्य के लोग नहीं आ पाते, क्योंकि एक बार अगर कर्नाटक से ट्रैक्टर चलेगा तो रास्ते में उसका एक जोड़ी टायर चेंज करना पड़ेगा उसको, तो दूर से नहीं आ पाएंगे लोग। हमको, हमारी एक रणनीति है
कि दिल्ली के आसपास के राज्यों में ही हमको आंदोलन के लोगों को ज्यादा सम्मिलित करना है। हरियाणा है, पंजाब है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान का एक हिस्सा है, ये राज्य जो है दिल्ली से लगे हुए हैं। हरियाणा की सीमा पे तो हम बैठे हुए हैं, हरियाणा बॉर्डर पर, चाहे वो पलवल बॉर्डर हो, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो। तो एक रणनीति का हिस्सा है हमारा कि दूर के लोग नहीं आ पा रहे, ट्रेन भी बहुत कम है, और बड़ी गैदरिंग करने में कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, जैसा हम 26 जनवरी को एक बार हो चुके हैं। तो आंदोलन अहिंसात्मक चले, गांधीवादी आंदोलन चले, वो लंबा चलता है अभी भी भाई साहब। ये आंदोलन को 9 महीने का मतलब मान के चलिए कि दुनिया पूरे विश्व में किसानों का इतना लंबा आंदोलन कहीं नहीं हुआ। ये हिस्ट्री है जहां 700 किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। ये विश्व का सबसे देर तक चलने वाला आंदोलन है। जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो हमको भी इसका ज्ञान नहीं था कि आंदोलन 9 माह चलेगा, परंतु जब आंदोलन 9 माह चल गया तो हमको लगा कि हम 2024 तक भी आंदोलन चला सकते हैं। तो उसके बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया कि 2024 तक ये आंदोलन कैसे चलेगा। ये बात जरूर है कि हम लोग आपस में हमारी मतभिन्नता हो सकती है, मनभेद हमारा नहीं होता है, मन हमारा एक है। आंदोलन सबके मन में बात है कि आंदोलन बड़ा है, हमारे व्यक्तिगत ईगो नहीं टकराते इसमें, क्योंकि सबके मन में एक ही बात आती है बार बार कि आंदोलन हम सबसे बड़ा है, हमारे सम्मान स्वाभिमान उससे भी बड़ा आंदोलन है। तो उसको उसके हिसाब से एक धागे से सब लोग बंधे रहते हैं, बिखराव की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। और सब जानते हैं कि जो भी इस आंदोलन से बाहर जाएगा वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए आंदोलन एकजुट है, एकजुट रहेगा। इसके लिए हमारी बैठकें होती रहती हैं, कार्यक्रम बनते रहते हैं, और छोटी मोटी बातें होती हैं उनका हम लोग आपस में बैठ के निराकरण करते रहते हैं। 2024 तक आंदोलन चलता रहेगा। आज भी ये रिकॉर्ड है कि दुनिया का एक लंबा, सबसे ज्यादा, भारत का तो खैर हो ही गया है, पर दुनिया का सबसे ज्यादा अहिंसात्मक ढंग से चलने वाला गांधीवादी आंदोलन एक किसानों का आंदोलन है, अन्नदाताओं का आंदोलन। जी कक्का जी, गुजरात के किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हमारे गुजरात समाचार टेलीविजन के बहुत बड़े दर्शक लोगों में आते हैं, बहुत बड़ी संख्या को इसे आप गुजरात की इस प्रोग्राम के माध्यम से आप पहुंच रहे हैं, क्योंकि गुजरात में सबसे ज्यादा इस समय पे दिखने वाला ये प्रोग्राम है। तो गुजरात की जनता को, गुजरात के किसान को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी गुजरात के किसान भाइयों से प्रार्थना है, विनती है कि अगर वो दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो उनकी मजबूरियां हम समझते हैं, पर गुजरात में एक भी किसान ऐसा नहीं होगा जो किसान का वाकई शुभचिंतक है, उसके दिल और दिमाग में ये आंदोलन ना हो। जब मुझे कई बार जेल बंद किया गया था तो मुझसे पूछा गया था कि मुझे बंद करो या मेरी जुबान को बंद करो, मेरे ख्यालों को बेड़ियां पहना नहीं सकते। संगीन के साए में, बंदूक के साए में गुजरात का किसान है, उसको आप हाउस अरेस्ट कर सकते हो, उसको गिरफ्तार कर सकते हो, मगर उसके अंदर जो ख्याल आ रहे हैं, जो जज्बात आ रहे हैं, उनको आप कैसे बंद करोगे, उनको कौन सी बेड़ियां पहनाओगे? तो गुजरात के किसान बंधुओं से मेरी प्रार्थना है कि वो इस आंदोलन में पूरी ताकत के साथ में निकलो, खेत खलिहानों से, और जंग करो बेईमानों से। अपने घरों से निकलो, खेत खलिहानों से निकलो। दमन है कितना, दमन में तेरे देख लिया और देखेंगे, अब नारा लगाया करते थे लोकनाथ जयप्रकाश के आंदोलन में कि दम है कितना, दमन में तेरे देख लिया और देखेंगे, कितनी ऊंची है दीवारें, देख लिया और देखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, ये हम नारे लगाते थे। अंधकार में एक प्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश। इसी प्रकार से जो आंदोलन दिखाई दे रहा है देश का, एक पूरे देश में जो अंधकार छाया हुआ है, वो अंधकार को चीरने की किरण दिखाई दे रही है। ये आज जो संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आंदोलन चल रहा है, और यही आंदोलन जो है देश को नई दिशा और दशा देगा। धन्यवाद। एक समय था कक्का जी जब हम 5 करोड़ टन अनाज पैदा करते थे और PL 480 के गेहूं और ऑस्ट्रेलियन माइलो ज्वार अपनी रेशनिंग की दुकानों से बेचा करते थे। जी। आज अगर हम 30 करोड़ टन अनाज पैदा करते हैं
जी दूध के उत्पादन में विश्व में प्रथम क्रमांक पे अपना स्थान हमने निश्चित किया है। जी सब्जियां और फल के उत्पादन में हम विश्व में दूसरे क्रमांक पे हैं और जी। जनसंख्या इतनी बढ़ने के बावजूद भी हम आज जो हमारी जरूरियातें हैं उससे कुछ ज्यादा ही पैदा कर पाते हैं। मैं मानता हूं कि इसका पूरा धन्यवाद इस देश के किसान को देना चाहिए। इस दिशा एक किसान की वजह से हम अपना सर ऊंचा रख के विश्व समुदाय के सामने खड़े रह सकते हैं, क्योंकि भीखमंगा देश जो अपने पेट भरने के लिए भीख मांगता है, अनाज के लिए भीख मांगता है, वो दुनिया के विश्व के समक्ष अपना सर ऊंचा रख के खड़ा नहीं रह सकता। आने वाला समय विपरीत आ रहा है। 2050 तक हमारी जनसंख्या करीब 150 करोड़ तक पहुंच जाएगी और हमें 10 करोड़ टन ज्यादा अनाज चाहिएगा उसके लिए। इसका मतलब ये हुआ कि 1951 में जो हम पैदा करते थे देश पूरा, उससे दुगुनी हमें बढ़ोतरी आने वाले 20 साल में करनी होगी। तो आप तो किसान से जुड़े हुए, किसान महासंघ से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको देश का किसान इस कसौटी पे खरा उतरेगा, या जो जिस तरह से जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में कृषि की बांटी जा रही है, आज 99% किसान मार्जिनल किसान हो चुके हैं और ये भी एक वजह है कि उनका जो उत्पाद है वो उत्पाद इनको इकोनॉमिकली वायबल यानी आर्थिक परीक्षण में उनको ठीक नहीं पड़ता। तो क्या लगता है आने वाले समय में कृषि की क्या समस्याएं होगी और उससे ऊपर उठ के देश को अन्न स्वावलंबित रहने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। किसान की कोई जाति नहीं होती है, वो एक किसान अलग बिरादरी है। एक सर्वे है एनजीओ का कि 92% शहादत देने वाली सीमा पर किसान के बेटे होते हैं, मजदूर के बेटे होते हैं। एक बेटा हमारा राइफल लेके इस देश की सुरक्षा में अपनी शहादत दे रहा है, तब बाकी लोग देश में चैन से सो पाते हैं। दूसरा बेटा हल और ट्रैक्टर लेकर खेत में देश में भंडार भर रहा है। दोनों मोर्चों पर किसान समाज का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। हम केवल आपसे क्या मांग रहे हैं? देश के हम भंडार भरेंगे, हम देश को भूखा नहीं रहने देंगे, लेकिन प्रार्थना आपसे कर रहे हैं कि हमको उतनी कीमत तो दे दो कि हम भी जिंदा रहे, हमको सुसाइड ना करना पड़े। 5 लाख किसान इस देश का सुसाइड कर चुका है। इस देश के लोकतंत्र पर इससे बड़ा बददुआ क्या हो सकता है? धन्यवाद देश को भूखा नहीं मानेंगे। आज की आपकी चर्चा काफी रसप्रद रही। मैं मानता हूं कि फिर से हम मिलेंगे। आने वाले समय में कृषि की दशा और दिशा क्या होगी, क्या करना चाहिए। अगर कृषि कानून चले भी जाते हैं तो कृषि की जमीन जो किसान कृषक के पास छोटी होती जा रही है, उसके जो इनपुट कॉस्ट है बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आने वाले समय में कृषि की दशा और दिशा क्या होगी, उस बात के लिए आपको हम चर्चा पे जरूर इनवाइट करना चाहेंगे। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। आज आप पधारे, उसके लिए गुजरात समाचार टेलीविजन की ओर से और मेरी अंगत हैसियत से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो आपकी मांगे हैं उसका एक सही हल निकल आएगा और वही आशा के साथ जय जवान जय किसान और उसके साथ जय विज्ञान जो अटल जी ने जोड़ा था, वो नारे के साथ हम आज की बात की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।